Dear students, today we are going to start Maths Part 1, Chapter 1, Angle and its Measurement, Exercise 1.1. See question number 7. In a right angled triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles of a triangle in degree and radians. Means the ratio of the two angles are given, acute angles, and one angle is already 90 degree. So first we consider that a triangle ABC where angle B is 90 degree. So remaining angles will be in the ratio, means angle A and angle C will be in the ratio 4:5. So for the solution, let triangle ABC be a right angle triangle. See the figure here. Let x be the common multiple. Angle B is already 90 degree here. It is considered. So you can take any one angle is 90, but remaining two other angles are in the ratio 4:5. So here we should consider angle B equal to 90 degree, angle A equal to 4x and angle C equal to 5x because their ratios are 4:5. X is the common multiple. So we know that angle A plus angle B plus angle C equals 180 degree, angle sum property of a triangle. So substituting the values of angle A, 4x, B is 90 degree and C is 5x equals 180 degree. So 4x plus 5x equal to 9x and remaining 180 minus 90 equals 90. So 9x equal to 90, therefore x equal to 10 degree. Now angle A equal 4x. So this will be 4 into 10 because value of x is 10 here. So this will be 40 degree. But we want to find angle A in radian also. So this will be 40 into pi upon 180. After simplification, we get 2 pi upon 9 radian. And angle B equal to 90 degree equals 90 into pi upon 180 because 1 degree equal to pi upon 180 radian equals pi upon 2 radian. For degree to radian conversion, we should multiply by pi upon 180. Now, angle C equals 5x. The value of x is 10 degree equals 5 into 10, that is 50 degree, and 50 multiplied by pi upon 180. After simplification, we get 5 pi upon 18 because 0 and 0 get cancelled. 5 pi upon 18 radian. So we see that angle A is 40 degree and its radian value 2 pi upon 9. Angle B equal to 90 degree and its radian conversion is pi upon 2. Angle C equal to 50 degree and its radian conversion is 5 pi upon 18 radian. So solution of this question completed, and all the three angles are in degrees as well as in radians. Now see question number 8. The sum of two angles is 5 pi radian. The sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Find their measures in degrees. So it is not given that it is triangle or quadrilateral. So any two angles, you have to consider only any two angles. So let the angles be x and y degrees. Let the angles be x and y degrees. As per as given, means according to the given condition. What is first condition? Sum of two angles is 5 pi radian. It is already given in the question. Therefore x plus y equal to 5 pi radian. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 पाई, हमें x और y को किस में फाइंड करना है, डिग्रीज में. तो हम जो 5 पाई यहाँ पर रेडियन में दिया है, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इट इज इक्वल टू 5 पाई multiplied by 180 upon pi. Here pi and pi get cancelled. So 5 into 180 becomes how much? 900 degree. So therefore x plus y equal to 900 and let it be equation 1. Clear? तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, x plus y equal to 900 डिग्री. अब इसके बाद देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन क्या है. सेकंड कंडीशन देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y. जैसे यहाँ पर एज्यूम करोगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन y. यहाँ पर लिख लो इन द ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि हमने यहाँ x माइनस y लिया है.
तो since x minus y equals 60 degree, it is given their difference is 60 degree, means x minus y equal to 60 degree given, and let it be equation number 2. ये इक्वेशन 2 भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x plus y equal to 900 and x minus y equal to 60. So we see that here it is plus y and here it is minus y, means वेरिएबल y इन अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, इनको हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट x plus y इक्वल्स 900 डिग्री। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, x plus y इक्वल टू 900 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ठीक उसके नीचे लिखते हैं सेकंड इक्वेशन, x minus y इक्वल टू 60 डिग्री। So plus y and minus y get cancelled. X plus x becomes 2x. 900 plus 60, 960 degrees. Now dividing by 2, we get x equals 480 degree. तो ये हमें x का वैल्यू डिग्री में मिल गया 480 डिग्री। तो 480 डिग्री यहाँ पर इजिली मिल जाता है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 480 डिग्री in equation 1. So what is equation 1? This one is equation 1, x plus y equal to 900. So therefore 480 degree plus y equals 900 degree. 480 plus y equal 900 degree. Therefore y equals 900 minus 480 becomes 420 degree. तो ये हमें एंगल x 480 डिग्री एंड एंगल y इक्वल टू 420 डिग्री, मीन्स टू एंगल्स में फाइंड करना था। तो हमने x और y के फॉर्म में ले लिया और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली 480 मीन्स फर्स्ट एंगल एंड y इक्वल टू 420 डिग्री। जैसा कि इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा, 900 आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो गया। तो हमें डिग्री तक ही पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ टिक कर दिया कि हमारे दो आंसर्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, x एंड y। इन केस कभी कभी क्वेश्चन में चेंजेस कर दिया गया कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियन, तब क्या करोगे, तब ये बड़े एंगल्स हैं और इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन कन्वर्जन के लिए मैंने फार्मूला बताया है अपने पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे तो उसमें सब फार्मूले एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर x इक्वल टू 480, देखो x की वैल्यू क्या है 480, तो उसको हम रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो x इक्वल्स 480 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, हियर 0 0 गेट कैंसल्ड, 0 0 गेट कैंसल, और इसको फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 24 पाई अपॉन 9 रेडियन, मीन्स 480 डिग्री इक्वल्स 24 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये फर्स्ट एंगल हमने कन्वर्ट कर दिया, x इक्वल टू 480 दैट इज 24 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये क्लियर होने के बाद अब y को भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि y में कितना रेडियन हो सकता है। तो y इक्वल टू 420 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स, अब यहाँ भी देखो 0 0 गेट कैंसल्ड और इसको 6 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 6 से इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी, तो दिस इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, तो y इक्वल टू 420 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स 7 पाई अपॉन 3 रेडियन। क्लियर, तो एंगल x एंड एंगल y मीन्स बोथ द एंगल्स आर कन्वर्टेड इन डिग्रीज, देखो डिग्री में भी आंसर हो गया और यहाँ रेडियन में भी हो गया। तो ये अपना इतना एक्स्ट्रा पार्ट है, अपने जो क्वेश्चन में पूछा है ओनली डिग्रीज में, तो 100 यहाँ तक डिग्री का कंप्लीट कर सकते हो, और अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है ये पार्ट को तो यहाँ पर रेडियन कन्वर्जन भी अपना प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि अपने को मालूम तो होना चाहिए ना कि रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास रेडियन कन्वर्जन है और डिग्री का नहीं है, डिग्री है रेडियन है, तो दोनों का कन्वर्जन हमें इजीली अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये कन्वर्ट करके लेना है। ओके, तो अब चलते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। अभी यहाँ पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का रेशियो कितना दे दिया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, 3:7:8। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियन, दोनों में फाइंड करना है अभी। तो दोनों में फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो देयर फॉर द एंगल्स आर, अभी 3:7:8 है तो द एंगल्स आर 3x 7x एंड 8x। ये तीनों एंगल हो गए यहाँ पर 3x 7x एंड 8x। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो, विदाउट डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हो। ऑल द थ्री रेशियो ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। तो इजिली यू कैन सॉल्व विदाउट डायग्राम और विथ डायग्राम, डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमें क्या करना है, डायग्राम के साथ सॉल्व करना है या विदाउट डायग्राम के साथ सॉल्व करना है, तो डिपेंड है, तो जैसा वैसा सॉल्व कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। Since 3x plus 7x plus 8x equal to 180 degree, it is angle sum property of a triangle. Clear? Adding these 3x plus 7x plus 8x, we get 18x. So 18x equal to 180 degree. Therefore, x equals 10 degree. x की वैल्यू कितनी हो गई 10, x equal to 10 degree. तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं इसमें, 1/1 3x 7x 8x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि इनके वैल्यू डिग्रीज और रेडियंस में कितने मिलते हैं। ओके, therefore 3x equals 3 into 10 because it is value of x equals 30 degree equals 30 into pi upon 180 equals pi upon 6 रेडियन। क्योंकि इसको 30 डिग्री को, ये तो डिग्री में आंसर हो गया, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यू वहाँ पर लिख लेते हैं 30 इंटू पाई अपॉन 180। 0 0 गेट कैंसल, 3 6 18, इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। ये हो गया फर्स्ट एंगल जो अपना 3x था। तो 3x इक्वल टू, फिर से देख लो, देयरफॉर 3x इक्वल्स 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 डिग्री। वाइट 3 इंटू 10 बिकॉज x इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने अभी अभी सॉल्व किया है। तो 3 इंटू 10 30 डिग्री एंड 30 डिग्री कन्वर्टेड इन रेडियन पाई अपॉन 6 रेडियन। नाउ 7x, तो 7x इक्वल्स 3, sorry, here it is 7. So 7x equal to 7 into 10, that is 70 degree, equals 70 into pi upon 180 equals 7 pi upon 18 radian. Here 0 0 get cancelled, and last one, that is remaining angle 8x equal to 8 into 10 equal to 80 degree equals 80 into pi upon 180 equals 4 pi upon 9 radian. So all the three angles are in degrees, 30 degrees, 70 degree and 80 degree, and in radian conversion pi upon 6 radian, 7 pi upon 18 radian and 4 pi upon 9 radian. Now see question number 10. In question number 10, the measures of the angles of a triangle are in AP, and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degrees and radians. So for the solution, अब यहाँ पर देखो, the measure of the angles of a triangle are in AP. अगर AP में है 3 angles are in AP, means we should consider angles in AP 3 consecutive numbers, जो अपने थे 3 numbers are in AP, वो फार्मूला भी यूज कर सकते हो या XY वेरिएबल में भी ले सकते हो। So for the solution, let the angles be A minus D, A and A plus D, which are in AP. देखो यही AP के 3 terms हैं अपने, A minus D, A and A plus D, or you can take another terms also which are in AP.
उससे भी सेम आंसर मिलेगा, सेम सोल्यूशन मिल जाएगा। तो a minus d, a and a plus d. Now using angle sum property of a triangle. Since a minus d plus a plus d equals 180 degree. Angle sum property of a triangle. These are three angles 1, 2 and 3. So sum of all the three angles is 180 degree. अब यहाँ पर देखो माइनस डी एंड प्लस डी गेट कैंसल्ड, a plus a थ्री टाइम्स, तो 3a, therefore 3a equals 180 degree. So 3a equal to 180 degree, therefore a equal to 180 upon 3, that is 60 degree, and let it be equation first. After that a plus d, since a plus d, अब अपना जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर दिया है कि देखो ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल इसमें कौन सा होगा, a प्लस डी, दिस इज a प्लस डी ग्रेटेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट इज a माइनस डी। कैसे मालूम पड़ेगा, देखो a में a प्लस डी ऐड किया गया और a में ही माइनस डी किया गया, तो ये सबसे छोटा हुआ और ये सबसे बड़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कंडीशन लेते हैं कि सिंस a प्लस डी इक्वल्स 5 टाइम्स a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल्स 5 टाइम्स a माइनस डी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर से देखो ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, a प्लस डी इज ग्रेटेस्ट, 5 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलेस्ट इज a माइनस डी, ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस डी इक्वल्स 5a माइनस 5d। जस्ट ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर a, अब यहाँ पर देखो a प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d, तो देयरफॉर d प्लस 5d, टेकिंग माइनस 5d इन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स प्लस 5d, तो d प्लस 5d इक्वल टू 5a माइनस a प्लस a टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो d प्लस 5d 6d equals 4a, d plus 5d equal to 6d equals 4a, therefore 6d equals 4 into 60 because a equal to 60 from equation first, therefore d equals 4 into 60 upon 6, तो यहाँ पर 6 10 जा this and 10 into 4 becomes 40 degree, so d equal to 40 degree, ये अपना मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद the angles of triangle are a minus d, फर्स्ट एंगल अपना क्या था a minus d, तो a minus d इक्वल टू 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिग्री इक्वल्स 20 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स पाई अपॉन 9 रेडियन, देखो 20 डिग्रीज पाई अपॉन 9 रेडियन, दोनों में साथ में कन्वर्ट करते जाएंगे। a इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 इक्वल्स 60 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन, तो 60 डिग्री पाई अपॉन 3 रेडियन, and last one a plus d 60 plus 40 equal to 100 degree, 100 into pi upon 180, so after simplification we get 5 pi upon 9 रेडियन, तो ये तीनों ही एंगल अपने पास मिल गए, 20 डिग्री पाई अपॉन 9 रेडियन, 60 डिग्री पाई अपॉन 3 रेडियन एंड 100 डिग्री 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, तो इस तरह से ये एंगल्स इजीली मिल जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, पाई अपॉन 3 रेडियन, पाई अपॉन 9 रेडियन, क्लियर, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल two adjacent angles are 40 डिग्री एंड पाई अपॉन 3 रेडियन, देखो ध्यान दो, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, not a simple, in a cyclic quadrilateral two adjacent angles are 40 degree and pi upon 3 radian, find the angles of the quadrilateral in degrees, तो सिर्फ डिग्रीज में फाइंड करना है, तो एक तो ऑलरेडी डिग्री में दिया है 40 डिग्री, तो और सेकंड एंगल है पाई अपॉन 3, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब एकदम बाजू बाजू वाले हैं, कोई भी टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल कंसिडर कर सकते हो। फॉर द सोल्यूशन
सिंस π/3, पहले हम π/3 को क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं कि सिंस π/3 इक्वल्स π/3 इंटू 180/π, क्लियर। तो देयरफॉर अब हमने π/3 कौन सा एंगल एज्यूम किया डायग्राम में, एंगल डी। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल क्या मिला हमें 60, और एंगल ए क्या है 40 डिग्री। सिंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ध्यान देना है कि ये सर्कल जो यहाँ पर बनाया गया मीन्स ऑल द वर्टाइसेस आर पासिंग थ्रू a circle or a circle passing through from all the four vertices of a quadrilateral, then quadrilateral is called cyclic quadrilateral। और उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया विच इज एंगल डी, एंगल ए इज 40 डिग्री। तो देखो अब अपने पास प्रॉपर्टी है सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए, सिंस एंगल ए इज 40, तो देयरफॉर 40 प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, therefore angle C equals 180 minus 40, 180 minus 40 डिग्री, दिस इज 140 डिग्री। अब ये 140 डिग्री तो मिल गया, लेकिन हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो सॉरी सिर्फ डिग्रीज में ही पूछा, अगर इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना होता तो 140 इंटू π/180, ये मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 गेट कैंसल्ड और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 2 9 जा 7 π/9 रेडियन। ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने को 140 डिग्री तक ही लेना है, एंगल सी इक्वल टू 140। देखो ये 40 है तो ये 140। अब इसके बाद एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, दीज टू अपोजिट एंगल्स आर देयर, डी प्लस बी। तो अपने पास डी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, देयरफॉर 60 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो हमें सभी एंगल्स ए बी सी एंड डी डिग्रीज में मिल गए। अगर इनको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है तो जैसा मैंने एक एंगल को शो करके दिखाया है कि डिग्रीज एंड मल्टीप्लाइड बाय π/180, ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे यहाँ पर। ओके, तो सभी एंगल्स को अगर कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर यहाँ ले लेते हैं। Therefore the angles of a cyclic quadrilateral are angle A equal to 40 डिग्री which is already given, लेकिन फिर भी आंसर में लिखना पड़ेगा इसको। एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A 40 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री, एंगल C 140 डिग्री एंड एंगल D 60 डिग्री। तो अब इसमें देखो एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट एंगल है डायग्राम में। ओके, देख सकते हो बैक साइड जा करके कि एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों का सम 180 है, और बी एंड डी का सम भी 180 है, जो यहाँ पर अपना एंगल आया 120 प्लस 60 180 मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। So dear students, you should practice at least twice all the questions, और सोल्यूशन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करके हो गया है, समझ में आ गया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।